Good morning, students. This is Dr. Amresh Patnaik. আজি SIOS ର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜନନ ବିଷୟରେ। ଜନନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ମନରେ କ'ଣ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁରର କାହିଁକି ବିଲେଇ ଛୁଆ ହେଉନି, ମଣିଷର କାହିଁକି କୁକୁର ପିଲା ହେଉନି? ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହେଉଛି ଜନନ ବା ପ୍ରଜନନ ଜରିଆରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଠିକ୍ ନିଜ ପରି ନିଜର ଅବିକଳ ନକଲରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବା ଅପତ୍ୟ ବା ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବଂଶରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଣିଷ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାତିର ସ୍ଥିତି ଓ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଜାତିର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏହା ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସୁତରାଂ ବଂଶରକ୍ଷାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜନନର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଜନନର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏହି ଜନନର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ? ନା ଜନନ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। এই ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନକୁ ଆମେ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନକୁ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନକୁ ଆମେ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ କେତେକ ଜୀବରେ କେବଳ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନେକ ଜୀବରେ କେବଳ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜୀବରେ ଉଭୟ ଉପାୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିବା, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛରେ କ'ଣ ହେଇଥାଉଛି ନା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଡାଳ କାଟି ଦେଉଛେ। ଡାଳ କାଟିକି ତାକୁ ଆମେ ପୋତି ଦେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥାଉଛି ନା ଆଉଥରେ ସେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ନୂଆ ଗଛଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନଟି କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ କ'ଣ। ଅଲିଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥ ଲିଙ୍ଗ ବିହୀନ ଜନନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ଯେମିତି ଆମର ମାତୃକୋଷ ପିତୃକୋଷ ଦୁଇଟି ଦରକାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ସିଏ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ। ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଅଣୁଜୀବ ସମେତ କେତେକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନ ଦେଖାଯାଏ। କାହାର ଦେଖାଯାଏ? କେତେକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତୃକୋଷ ବା ଜନନ କୋଷ ବିଭାଜିତ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅପତ୍ୟ କୋଷ ବା ଅପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମବିଭାଜନ ବା ସୂତ୍ରାୟନ ବା ମାଇଟୋସିସ୍ ଏବଂ ଏମାଇଟୋସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହେଉଛି ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଇଟୋସିସ୍ ବା ସମବିଭାଜନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମାଇଟୋସିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅସମବିଭାଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଓସିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାଇଟୋସିସ୍, ଏମାଇଟୋସିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଓସିସ୍। ओके, ये मियोसिस कौन? दिस इज कॉल्ड अर्ध विभाजन। अच्छा, बहुकोषी जीवमान देखा अलिंगी जनन यह सरल सम विभाजन प्रक्रिया सामान्य भिन्न। तेबे यही जीव मानक जनन कोष बोली किसी जिनस न थाए। जदि जनन कोष था से लिंगीय जनन द्वारा कौन करते? वंशवृद्धि करते। जेहेतु सेमानकर जनन कोष बोली यही जीव मानकर जनन कोष बोली किसी जिनस न थाए, तेणु सेमाने कौन करती ना अलिंगी जनन वंशवृद्धि करते। यापर पिले आम जाना लिंगीय जनन विषय। अच्छा, लिंगीय जनन कौन ना लिंगीय जनन प्रक्रिया वंश विस्तार करुवा जीव मान शरीर कौन होता है? दुई प्रकार कोष थाए। गोटे कायिक कोष, कि कोष? गोटे हूँ कायिक
बा सोमीय कोष बा सोमाटिक सेल बोली कहा जाए आ गोटे जायक कोष जर्म सेल बोली कहा जाए कायिक कोषर गुणसूत्र क्रोमोजोम संख्या एक जुग्म संख्या बा सम संख्या इवन नंबर होता है यह हूँ सम संख्या इवन नंबर अर्थात यह हूँ कौन हुए ना 2 द्वारा विभाजित होता है 2n 4n 6n 8n एभली थाए जनरली 2 4 8 16 एमती तार 2 गुणित हो जाए कौन एक निर्दिष्ट जातिर सबु जीवरे यथा सबु मनुष्य एवं सही जातिर जेकोसी जीव तथा जेकोसी मनुष्यर जुग्मज व्यतीत सबु कोषरे यही संख्या एकापरी रही है सुतरां सही जाति पाई यही संख्या स्थिर बा अपरिवर्तनीय थाए जदि आम उदाहरण नबा उदाहरण आम देखा मनुष्य आमर केते जोड़ा अच्छी ना 46 टी अच्छी किंबा आम ताकू केते कहू ना 23 जोड़ा केते कहि थाउ आमे ताकू 23 जोड़ा बा 46 टी आमर थाए कौन आम शरीर रे गुणसूत्र था से 46 टी थाए 23 जोड़ा यही संख्या को मक्कार जदि देखिबा से 20 अटे यही संख्या को 2 गुणित बा डिप्लॉयड संख्या बोली कहा जाए कौन कहा जाए 2 गुणित बा ताकू आमे डिप्लॉयड संख्या बोली कहबा यह कुछ आमे सबुबले 2n द्वारा ताको सिंबल रे चिन्हित करिथाउ सोमीय कोष विभाजन द्वारा शरीर वृद्धि मरामती आदि संभव होता है यह हूँ माइटोसिस बा आकु सम विभाजन कहा जाए माइटोसिस बा आकु कौन कहा जाए सम विभाजन यही विभाजन जात अपत्य कोष क्रोमोजोम संख्या अपरिवर्तित रही है किंतु जदि आम मातृकोषर क्रोमोजोम संख्या ये समान सबुबले रही है जनन अंग अर्थात पुरुषर मुस्क जोड़ा कि शुक्राशय बा टेस्टिस तार स्त्रीर डिंबाशय थिबा आदि जायक कोष जोड़ा कि आम प्राइमोडियल जर्म सेल बोली कहि थाउ एवं सपुष्पक उद्भिदर फूलर केशरे थिबा पराग मातृकोष तथा फलिकारे थिबा मेगास्पोर मातृकोष रे मध्य 2n संख्यक गुणसूत्र थाए कोड कोड थाए मन रखिला बिले जनन अंग हमर पुरुषर मुस्क टेस्टिस बा शुक्राशय आ गोठी सपुष्पक उद्भिदर फूलर केशरे थिबा पराग मातृकोष बा पोलेन मदर सेल फलिका चक्र कार्पेल रे थिबा मेगास्पोर ए सबुरे से 2n संख्यक कौन थाए ना गुणसूत्र रही है यही कोष गुड़ी को जुग्मज जात होता है एवं जुग्मक जनन प्रक्रिया रे जुग्मक सृष्टि समय रे अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा हमर मियोसिस होता है सेठी कौन होता है मियोसिस बा ताको हमें अर्ध विभाजन बोली कहबा हमें अर्ध विभाजन बा मियोसिस बोली कहबा बा ताको हमें अर्धायन बोली मध्य कहिताउ एक विशेष प्रकार कोष विभाजन होता है एही जोगु पुरुषर शुक्राणु और स्त्रीर डिंबाणु बा फूलर परागरणु डिंबकोश रे कौन होता है ना गुणसूत्र संख्या अधा होता है यही संख्या को एक गुणित बा हाप्लॉइड बोली कहा जाए हाप्लॉइड अर्थ आमे ताको n भाव में ताको सूचित करा जाय थाए डिप्लॉइड अर्थ 2n हाप्लॉइड अर्थ n हाप्लॉइड अर्थ n ओके उदाहरण स्वरूप मनुष्यर जदि 46 टी थाए 2n इक्वल टू n इक्वल केते हबो तार अधा दैट इज 23 सेंद मकार 20 टा जदि 2n थाए डिप्लॉइड रे तेबे हाप्लॉइड केते हबो ना केवल 10 टी हेबो ओके केवल 10 टी हेबो तो से भली पुजुग्मक और स्त्रीजुग्मकर मिलन रे समायन फल रे जुग्मज सृष्टि होता है एथिरे दुईटी जुग्मक रे थिबा n और n मिसिले से 2n संख्यार स्थापन संभव होता है जीव जगत रे लिंगीय जनन बहु पूर्वरु प्रचलित होई आछी कहीं पुजुग्मक और स्त्रीजुग्मकर गठन आकार आयतन आचरण व्यवहार आदि प्रायतः भिन्न भिन्न होता है यही सब जदि हमें देखिबा हमकु दुई प्रकार जुग्मक एकापरि जदि हेइथांती ताको हमें आइसोगेमस बोली कहिबा कोन कहबा आइसोगेमेट्स बा समजुग्मक दुई प्रकार जुग्मक एकापरि हेइथिले हमें ताको कहबा आइसोगेमेट्स बा समजुग्मक से भली जुग्मक दुईटी जदि भिन्न भिन्न होइथांती अलग हेइथांती ताको हमें असमजुग्मक आउ तमनको मिलन को असमग्म असमजुग्म न बोली आमे कहि थाउ ठीक अछि ओके तो साधारणतः शैबाल कबक केतक आदि प्राणी परि जीव मान करी ए दुई प्रकार कोन देखा जाय थाए ना दुई प्रकार प्रक्रिया देखा जाय थाए अन्य सब उद्भिद प्राणी रे सब हमर असम जुग्मन को डिंबक जुग्मन बोली कहा जाय
प्राय सबु क्षेत्र में आयतन दृष्टि पुजुग्मक छोट गतिशील आ सक्रिय अटे। बुझे सब देख सबु प्राणीर स्त्री माने बहुत मोटा था आने नॉन मोटाइल माने से माने गतिशील हो पारती ना गोटे जगार ही फिक्स था। पुरुष माने सब एक्टिव था सक्रिय था पतला था से माने गतिशील हो पारती आराम से। यार उदाहरण होची शुक्राणु आ परागरेणु आउ डिंबाणु। जदि आम उदाहरण देखा आम तीनोटी उदाहरण नहीं पारिबा शुक्राणु परागरेणु एवं डिंबाणु। जुग्मकर मिलन होची लिंगीय जनन मूल भित्ति। एथिरु जात जुग्मज परवर्ती पीढ़ी जीवन प्रथम कोष एथिरे समविभाजन कोष संख्या बढ़ी थाए। से भली जदि आम देखिबा पीढ़ी पर पीढ़ी संपादित हो चली थाए जीव मरी जाए किंतु जीव जाति बंची रहे। ता छड़ा अपत्य मान भिन्न नुआ लक्षण जात होगा आवश्यक परिवर्तन ए प्रमुख उत्स हूँ कौन लिंगीय जनन। यापर जदि लिंगीय जनन न था नूतन जाति नूतन लक्षण थिबा जाति केबेले सृष्टि हो पारि न था। यापर जीवा पिले कोष विभाजन विषय पढ़ा। कोष विभाजन कौन कोष विभाजन कोष विभाजन केते प्रकार कौन से विषय जानिबा। कोष विभाजन हूँ मुख्यतः दुई प्रकार गोटे हूँ सम विभाजन आ गोटे हूँ अर्ध विभाजन। सम विभाजन को आम माइटोसिस बा सूत्रायन कह जाए अर्ध विभाजन को अर्धायन बा मियोसिस कह जाए। तो माइटोसिस कायिक कोष एवं आदि जायक कोष जुग्मज जनन आद्य पर्यायर संगठित होता है। स्थले मियोसिस केवल जुग्मक सृष्टि उद्दिष्ट होता है। क्या जुग्मक सृष्टि मियोसिस उद्दिष्ट होता है आउ यह जुग्म जनन शेष पर्यायर घटी थाए। सम विभाजन अर्ध विभाजन ठीक अच्छे। ये सम विभाजन और अर्ध विभाजन जाना हेले आम कौन करवा यार पार्थक्य हूँ इम्पोर्टाट। जदि पार्थक्य को प्रथमे पढ़ीदेवा तापर ये विषय जाना तेबे ठीक मन रही पार। प्रथम पर्यायर नेस्टी विभाजित हुए या आम नेस्टी विभाजन कही था कारण ये दुईटी पर्याय होता है। परवर्ती पर्यायर आपको आम साइटोकाइनेसिस बा कोष जीवकर विभाजन होता है ताकू आम साइटोकाइनेसिस कही था। नेस्टी विभाजन को आम कौन कैरियोकाइनेसिस बोली कही था। यह एक जटिल प्रक्रिया एवं यह को चारोटी अवस्था वर्णना करा जायछि। एठी बिले देखि पारथिबे प्रथम अवस्थार अंतरावस्था कह जाए। ये अंतरावस्था कौन हुए ना कोष रस केन्द्रपिंड क्रोमाटिन जालिका नेस्टी और निन्यष्टि रही था। निन्यष्टि सब गोटे गोलाकार अंगिका ये थाए। ये तुम देखिपुथ गोटे गोलाकार अंगिका ये आमक निन्यष्टि थाए आउ ये हूँ आमर न्यष्टि। ओके हूँ आमर न्यष्टि। नेस्टी हूँ गोटे गोलाकार अंगिका जी की कोषर मध्य भाग थाए एवं प्रथमे जेतेबेले कोष निजकू प्रस्तुत करे कोष विभाजन पाई से अवस्था को आमर कह जाए अंतरावस्था। यह परे जेतेबेले प्रथम अवस्था को आसे ताकू आमे कौन कहवा प्राणी कोष आ उद्भिद कोष उभय देख ये आमर कोष रस कोष झिली थिबा बेले ये आमर कोष रस आ सबुजाक समान अच्छी मात्र कोष भित्ति थाए। ये मध्य अंतरावस्था ये निजको प्रस्तुत करि थाए कोष विभाजन पाई। जेतेबेले अंतरावस्था सरी जाए पूर्व आद्यावस्था तांकर गुणसूत्र गुड़िक एकल गुणसूत्र भितर से माने प्रस्तुत करती। यह परे पूर्व एकल गुणसूत्र देखि पारथो एठी डबल डबल हेकि आस्थांदे एभଳି। ओके एभଳି आस्था होचुनी। ओके एभଳି थाउचन। तो एई अवस्था रे एठी तमे देखिथो तर्कु तंतु एठारे प्रस्तुत हुए। प्रथमे तर्कु तंतु एसो तर्कु तंतु सृष्टि हला माने कोष विभाजन आरंभ हो गला बोली आमे जानि परिबा। एहा परे जिबा पूर्व आद्य अवस्था को एठी आमे तारक देखि पारछे जोडा कि आमे तर्कु तंतु कहतला से तारक आमे देखि पारछे। एपरे एमाने कोन करंती मझिरे देखि पारथो एठी एमाने पूर्व उभय आड़ को से माने आकर्षित होइथान। ये सब आम क्रोमोजोम गुड़िक ये सब पूर्व आड़ उभय आड़ को से माने आकर्षित होइथान। एथिरे मध्य देखि पारथो नेस्टी झिल्लर विलोप केमि घटुची। नेस्टी झिल्लर विलोप सत्वे से माने आकर्षित होउछन। यह फल शेष अद्यावस्था से माने मध्य समतल रही जाती। कौट रही ना से माने मध्य समतल रही जाती। देखिपार ये मध्य समतल क्रोमोजोम गुड़िक गुणसूत्र गुड़िक किभली भाव में अच्छा। यापर जिते मध्यावस्था को आसे से माने आउ थे
कौन हुए ना एई ठारू केंद्र आड़क से गति करते केंद्र ठारू आमर उभय पोल बा मेरु आड़क से गति करिथांती मेरु आड़क गति कर सारा पर उत्तर अवस्था कौन हुए ना उत्तर अवस्था एठारे कोष झिल्लीर संकुचन घटी थाए एठी कोष झिल्लीर संकोचन एठी घटी थाए कोष झिल्लीर संकोचन घटिया फल कौन हुए धीरे 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 ये आसी या सहित जोग हो जाए फल ये हूँ गोटे कोष आउ ये हूँ अन्य गोटे अपत्य कोष सृष्टि होता है ये गोटे कोष आउ ये हूँ गोटे कोष दुईटी कोष सृष्टि होता है तो अंतिम अवस्था आम पाखरे सम विभाजन रे गोटे मातृकोष विभाजित होई आमर केतोटी ना दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होता है यापरे आमर विभिन्न अवस्था गुड़िक तो आम जानिले तापरे कोष जीवक विभाजन किभଳି होता है से विषय टिके जानिबा ए कोष जीव विभाजन कौन ना ये देखा अपत्य कोष प्रथम सृष्टि हुए प्रथम जिते कोष टी मातृकोष विभाजित हुए प्रथम ताकू सेल प्लेट बा कोष प्लेट माध्यम से विभाजित होता है ये जो कोष माध्यम से विभाजित है पर कौन हम ना ये गोटे कोष मातृकोष ये कोष पट्टिका सृष्टि करे बा सेल प्लेट सृष्टि करे या आम कोष पट्टिका बोली कही था ए कोष पट्टिका जिते सृष्टि हुए तापरे गोटे कोष विभाजित होई दुई भाग रे परिणत होता है यह परे आमे जानिबा अर्ध विभाजन कौन अर्ध विभाजन द्वारा सबले गोटे मातृकोषरु एम जदि अर्ध विभाजन पढ़िबा अर्ध विभाजन होची कौन ना गोटे मातृकोषरु जदि चारोटी अपत्य सृष्टि हेले केतोटी अपत्य चारोटी अपत्य जदि सृष्टि हेले तेबे आमे ताकू अर्ध विभाजन बोली कहि थाउ ये अर्ध विभाजन रे कौन हुए यह हूँ सम विभाजन सब अवस्था सहित सामान किंतु केवल अर्ध विभाजन आद्यावस्था को 5 भाग रे विभक्त कराई आईटा ही सबुठारु इम्पोर्टाट जिनस अर्थ विभाजन आद्यावस्था को 5 भाग रे विभक्त कराई से 5 भाग विषय प्रथमे आमे भल भाव मन रखिबा ये हूँ सबुठारु परीक्षा पई उपयुक्त प्रश्न अटे प्रथमे जिबा आद्यावस्था 1 रे हूँ 5 भाग किए किए ना लेप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस प्रथमे आसवा लेप्टोटिन हुए लेप्टोटिन रे कौन थाए पे देख ना लेप्टोटिन रे जिते ये पलि आसे जो आमर गुणसूत्र गुड़िक अच्छा पाखापाखि लगालग हो जाती ये गुणसूत्र गुड़ देखिपु एमाने पाखापाखि लगालग हो था जिते गुणसूत्र गुड़िक पाखापाखि लगालग हो था से माने कौन करती ना ताको आमे जुगल गुणसूत्र बोली कही था कौन कही था ना जुगल गुणसूत्र बोली ताको कही था यही गुणसूत्र गुड़िक भितर एटी देख यही अंश जो प्रक्रिया घटी थाए ताको आमे गुणसूत्रर आपुंजन प्रक्रिया बोली कही था कौन ना आपुंजन प्रक्रिया तापरे जाइगोटिन रे कौन हुए जाइगोटिन रे जदि एई भली कार्य होता है तेबे आमे तार पर अवस्था डिप्लोटिन लेप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन तो लेप्टोटिन पर आमर जाइगोटिन तापरे पाकिटिन पाकिटिन रे गुड़िक कौन हुए ना दुईटी परस्पर जो दुईटी गुणसूत्र ये देखुल ये से दुईटी प्रत्येक निज अविकलन कल आउ दुईटी से तैयारी करती तेणु से 4टी लिखे जाती एवं ताकू आमे कहूँ चतु एकक सूत्र बा चतु एकल सूत्र बोली कही था ताकू आमे टेट्राड बोली कही था कौन कही था टेट्राड या को आमे बाइभालेंट बा जुगल गुणसूत्र या को आमे टेट्राड बा चतु एकल बोली कही था या परे पाकिटिन अवस्था कौन हुए ना काइजामा गुणसूत्र गुड़िक सब कंडेन्स हो जाए तापरे आमर जमी जीप बा मनी पर्स चेन जमी थाए से यदि खोली दि जाए से जमी देखा जाए ये ठीक से माने देखा जाई थांती ये अवस्था रे तो ये जो पॉइंट देखिपारथो ये पॉइंट रे जोठी हमर एमती क्रॉस हेकी थाए ये जो पॉइंट को आमे कोन कहबा ना कायजमा पॉइंट बोली कहबा तेणु कायजमा पॉइंट आकु कह जाए कायजमा फॉर्मेशन या परे डिप्लोटिन ये डिप्लोटिन अवस्था रे सरला परे हमर शेष अवस्था आसे ताको होची डायाकाइनेसिस जोठी देखि परथो गुणसूत्र गुड़िक गोलाकार प्रायतः वर्तुलाकार और गोलाकार रूप धारण करिथांती अदृश्य एठी नेस्टी झिल्ली हो जाए पृथकीकरण आरंभ हो जाए था गुणसूत्र गुड़िक वर्तुलाकार देखा जाती तो यही अवस्था को कहूँ डायाकाइनेसिस।
कौन कहुचे डाया काइनेसिस। ओके एहा परे आमे जदि आउ अन्य गुड़िक अवस्था देखिबा प्राय सम विभाजन आउ अर्ध विभाजन प्रत्येक अवस्था प्रायतः समान अछि। ओके आउ समय नष्ट न करी तार परवर्ती अंश को जिबा। तापरे एई विभाजन रो द्वितीयटी होची द्वितीयक विभाजन। एई विभाजन को कौन कहा जाए ना जो द्वितीयक विभाजन अछि ए द्वितीय विभाजन रे कौन होता है ना अर्ध विभाजन प्रथम विभाजन परे ए विभाजन टी होता है। एथिरे मध्य सेई चारोटी अवस्था थाए ताकू आद्यावस्था 2 मध्यावस्था 2 उत्तरावस्था 2 एवं अंतिम अवस्था 2 बोली भी कहा जाए। उदाहरण स्वरूप जदि आमे दबा 20 टी गुणसूत्र थिबा कोष जो चारोटी कोष सृष्टि करे ताहा होची प्रत्येक कोष रे 10 टी करी गुणसूत्र रही थाए। तेणु यह होची कौन हुए आमे जानिले जे अर्ध विभाजन रे गोटिए कोष रु अर्ध संख्यक गुणसूत्र थिबा चारोटी अपत्य कोष सृष्टि होई थाए। एटी समविभाजन अर्ध विभाजन रो पार्थक्य देखिदेबा। समविभाजन होची माइटोसिस अर्ध विभाजन होची मियोसिस। माइटोसिस होची कायिक कोष बा आदिजायक कोष रहितबा बेले यह जुग्मज कोष रहिଥାଏ बा जनन कोष रहिଥାଏ। समविभाजन मातृकोष एवं अपत्य कोष रे थिबा गुणसूत्र समान रहिଥାଏ किंतु एठारे अर्धेक होइଥାଏ। ये कौन करे ना गुणसूत्र स्वाधीन भाव में अर्थात अन्य उपरे निर्भर न करी विभाजित होइथांती। आपुंजन अंश किंबा विनिमय हुए नहीं किंतु अर्ध विभाजन रे आपुंजन और अंश विनिमय होइथाए। माइटोसिस उत्तरावस्था रे गुणसूत्र केंद्र विभाजन होवा फल रे क्रोमाटिड मेरु आड़ को जाइथाए किंतु मियोसिस रे उत्तरावस्था रे गुणसूत्र केंद्र विभाजित हुए नहीं फल रे संपूर्ण क्रोमोजोम आड़ को मेरु आड़ को से जाइथाए। एथिरे 2टी अपत्य कोष किंतु अर्ध विभाजन रे हमर 4टी अपत्य कोष सृष्टि होइथाए। ओके